so that the field, especially the goalpost, is visible and he can practice. His mates called him Chand, the moon that shines at night. Thus, his name became Dhyan Chand. He was such a personality who was liked by one and all. He made remarkable performances and was often referred to hockey ka jadugar. His major contribution was three Olympic Games Indian won gold medals. That is in 1928, 1932 and 1936. During that era, India was dominating the world in hockey. In addition, India won 7 out of 8 Olympic Games from 1922 till 1964. His fame was not limited just to India. Adolf Hitler was impressed by his skills and offered him German citizenship and the position of colonel in German army, which Dhyan Chand readily refused. This great patriot served for country for 34 years and retired on 29 August 1956. In the very same year, he was awarded with India's third highest civilian award, Padma Bhushan. His retirement was not the end. He started taking coaching camps of senior hockey teams at Mount Abu, Rajasthan. He also served as chief hockey coach at NIS Patiala for many years. This day, 29th August, coincides to be his birthday along with the day of his appointment in army and also the day of his retirement. So, to pay a tribute to this legend, in the year 2012, first National Sports Day was observed. Even Fit India movement was launched by our respected Prime Minister, Shri Narendra Modi, on the same day last year. So, on this day, let's vow to produce more Dhyan Chand for betterment of sports culture of our nation. Jai Hind, Jai Bharat. Now, a very inspirational and motivational song sung by Harsha of Class 12 Commerce is on its way. Enjoy the track. A very good morning to all. Today I, Harsha of Class 12th Commerce, will present a song in celebration of National Sports Day. बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे बाँ पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तार भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो
कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह. Thank you and happy Sports Day. Song. So we'll take the program further. We have the honor to have as colleague a retired Air Force gentleman, Mr. Baldev Singh, as PRT in our school. He has served the nation for 20 years as Air Warrior. He actively participated in Kargil operation and is also keenly interested in sports, especially football, volleyball, kabaddi, and athletics. Let me now urge him to share his views on the topic, fitness and wellness. Baldev sir. Baldev sir, if I'm audible to you, kindly reply. Probably he is not able to connect. So let's move further. Your dreams, your plan, your reach. There will be obstacles, there will be doubters, there will be mistakes. But with hard work, with belief, with confidence, and trust in yourself and those around you, there are no limits. Let's now meet our ex-student, session 2019-20, Pratima Pratim, a rising sports star, who continuously for 3 years represented KVS in SGFI. We are also sharing a recording of her where she has narrated her experiences. Shivani ma'am, over to you. Shivani ma'am. Want to share my views on how sports changed my life. Sports is a big part of our life as it become a way of life for healthy and fit India. National Sports Day is celebrated on 29th of August every year. It is celebrated on the occasion of Indian hockey player Dhyan Chand. Sports is important for all the students as it is one activity which helps to develop multiple characters such as sportsmanship, leadership quality, togetherness, teamwork, etc. These are those qualities which help us to excel in life. I believe in sports and the impact it had on my life. For me, sports is not just playing games with friends. My whole life revolves around sports. Being a student, I prefer studies are the only way to success in life. Whenever I play games, it was just for fun and nothing else. First time sports attracts me when I was in 6th standard. I was attending annual sports meet. There I realized how sports is valuable for us. Some of the students of my school participated in regional sports meet, annual sports meet and SGFI sports meet. This fascinates me and this fascination helps my mind to change the perspective about sports. Then I started participating in different sports activities. I got so much of appreciation and achievement.
This boosts my confidence, and when my confidence gets boosted, I started a lot of hard work to develop myself as a good sportsman. For boosting my confidence, my sports teacher, Mrs. Yashi ma'am, helps me a lot. She has a very cool personality and supported me in every obstacle. And that's the thing that I like about her. These are those medals which I got in National Sports Meet 2019 and 20. This is the gold medal which I got in 4 into 100 meters relay. And these two are the silver medals which I got in long jump and 4 into 400 meter relay. Sports taught me one thing, that being just beautiful is not enough. You need to be strong, physically, mentally, and emotionally. Thank you. Thanks to Pratima. To commemorate today's event, our Vidyalaya held a poster making competition and PPT making competition among students. An online quiz is also scheduled to be held at 12 o'clock today. Our eager and zealous students participated in poster making and prepared PPTs on importance of games and yoga in life. We have the results of the same with us, and it is the best time to announce the winners. Before the declaration of the results, let us view a PPT highlighting importance of games. And Baldev sir has also joined us. So shortly after announcing the results, I'll urge him to speak on his topic. Final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India scored. India score again. So as I was talking about poster making competition, the winners have been selected class-wise. We are just announcing the names of first prize holders. From class 6, the first prize has been bagged by Shruti, class 6B. From class 7, the first prize has been bagged by Muskan, class 7B. From class 8, it is Aryan Nain who has secured the first position. He's from class 8C. In senior classes, in class 9, it is Jagmeet from 9A. From class 11,
it is Sachin from 11 Commerce. And in senior most class, that is class 12, Anand Mishra, class 12 Science, has bagged the first prize. In PPT making competition on sports and yoga, the list of winners goes like this. In junior group, class 6 to 8, the first prize has been secured by class 6B student Manjot, and among seniors, it is Naman, class 10A. So now I request our respected Baldev sir to please share his views on wellness and fitness. Thank you, sir. Okay, thank you very much, madam. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदनीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य, समस्त शिक्षकगण, स्टाफ सदस्य और मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात और नमन। सर्वप्रथम आप सबको राष्ट्रीय खेल कूद दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बच्चों, यह एक सुंदर, सकारात्मक और ऊर्जावान दौर चल रहा है। कोरोना जैसी बीमारियों ने सभी का ध्यान साफ सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य और अनेक मुख्य बिंदुओं पर आकर्षित कर दिया है। चलो एक बार फिर से हम प्रकृति की ओर जुड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि सर्वप्रथम मनुष्य है जो जंगल में रहा करता था और अपना जीवन गुजर बसर करता था, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। सब कुछ काम है अपने हाथों से करता था या फिर पैदल जाकर किया करता था, और स्वास्थ्य एकदम से उसका अच्छा रहता था। बाद में लेकिन फिर भी उसकी दिनचर्या है पैदल चलकर ही हुआ करती थी। यदि आप हमारा स्वतंत्रता का एक चित्रण या फिर चित्र आप देखते हैं या कोई वीडियो आप कभी देखना, तो आप पाओगे कि किसी भी व्यक्ति का है थोड़ा सा भी पेट बाहर नहीं निकला हुआ है, एकदम से स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ। आज का युग बीमारियों से ग्रस्त क्यों है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आपको पता होगा बच्चों कि शरीर और मन, इन दोनों का आपस में संतुलन होना अर्थात बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे तकड़ी में हम बात डालते हैं, उस दूसरी तरफ सामान डालते हैं, इसी प्रकार से हमारा शरीर और मन, इन दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जो बच्चा स्वस्थ होगा, जो इंसान स्वस्थ होगा, उसके विचार भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही शुद्ध स्वच्छ होंगे। अब देखने की बात यह है कि क्या चीज हमसे खो गई है, हमसे क्या चीज खो गई है। यहाँ पर बात आती है हमारा स्वास्थ्य है। अब यहाँ पर जो फिजिकल स्वास्थ्य है वो तो खोया ही खोया है, साथ के साथ मनुष्य ने अपना मानसिक स्वास्थ्य भी खो दिया है। चलो फिर से लौट चलें हम अपनी प्रकृति की ओर। बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो हमारा ध्यान हमारे खान पान से भी की तरफ भी अच्छी तरह से हम खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन भी कहीं खो रहा है। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। जो अनुशासन है, अनुशासन का शरीर के साथ में कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो फिर वो डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, क्योंकि उसकी जो दिनचर्या है पूरी अनुशासनात्मक होती है। अगर हम अपनी डिफेंस फोर्सेस का एग्जाम्पल देखते हैं, उनका उदाहरण देखते हैं, तो हम पाएंगे कि वो स्वस्थ क्यों हैं। उनका हर एक क्रियाकलाप हमारे को सुंदर नजर आता है। उनके हम कैंपस में चले जाएं, एक एक चीज है बड़े सलीके से सजा कर रखी हुई है।
ये योजना कहाँ से शुरू होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। और सुबह हेल्थ रन से लेकर आप देखेंगे कि सुबह हेल्थ रन के लिए जाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। इन सारी चीजों के साथ में डिफेंस पर्सनल कैसे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। और डिफेंस पर्सन में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी बात करूं, वो भी जुड़े हुए हैं। अगर हमारा जीवन अनुशासनात्मक नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो हम दुश्मन का कैसे मुकाबला कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। फिर से हमारे को उस प्रकृति की तरफ को लौट कर चलना है। तो एक प्लान बनाएं, एक योजना बनाएं, किस प्रकार से हम अपना जीवन नियमित कर सकते हैं। सबसे पहले प्लान के हिसाब से ही आपको, योजना के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। किस समय पढ़ाई करनी है, किस समय खेल कूद के लिए जाना है, जब जो काम करना है। ये नहीं कि मस्त हो गए हम वीडियो गेम में और हमारे को पता नहीं चला कि कब 3-4 घंटे या पूरा दिन बीत गया। तो बच्चों, इसके साथ में अगर हम फिजिकल वर्क की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा पसीना नहीं निकलेगा वहां का आनंद ही हो रहा है और है। मैदान में जब हम जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। बेशक हम जितना मर्जी वीडियो गेम खेल लें या फिर इंटरनल जो गेम है, आंतरिक जो घर में बैठकर हम खेल खेलते हैं, अगर हम देखते हैं उससे कहीं फार फार बेटर है मैदान में जाना। जब हम मैदान में जाएंगे, फिजिकल वर्क होगा, हमारे को भूख अच्छी लगेगी, हमारे को पेट की कोई समस्या नहीं होगी, शरीर की कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी बीमारी हमारे को ग्रस्त नहीं कर सकती। अब इसके साथ में अगर फिजिकल के साथ में, शरीर के साथ में और क्या चीजें संबंधित है, जैसे शारीरिक परिश्रम के साथ में ब्रीदिंग, हमारा श्वास क्रिया है, बहुत तरह से एक साइंटिफिक है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जो पूरे का पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। तो ये जुड़ा हुआ है। ब्रीथ क्यों जुड़ा हुआ है? जब हम खेल के मैदान में जाएंगे, परिश्रम करेंगे, तो हम लंबा श्वास लेंगे, और जब हम लंबा श्वास लेंगे हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा खून मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। और जब हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को और शरीर को पूरा खून मिलेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, तो फिर क्या होगा, हमारा जो दूसरी चीजों में भी ध्यान अच्छे से लगेगा, हम अपनी अच्छी कंसंट्रेशन बना सकते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ज्यादा भी परिश्रम नहीं करना कि ज्यादा ही थकान हो जाए। एक नियमित दिनचर्या हमारे को बनाने की आवश्यकता है। और बच्चों, ये भी ध्यान देने की बात है, जैसे ही आपका ब्रीथ लंबा हो जाएगा, क्योंकि श्वास की प्रक्रिया है, भगवान ने, परमात्मा ने सबसे पहले हमारे साथ में जोड़ी है। क्योंकि जैसे ही श्वास आते हैं, सब पहला श्वास आया तो जीवन मिला, और अंतिम श्वास जब चला गया तो मृत्यु हो गई। इसी के साथ में ये सारी चीजें, प्रक्रिया चलती है। और जीवन, जो मनुष्य का जो जीवन है या उम्र है या उसकी आयु की हम बात करते हैं, तो हमारे श्वासों के साथ में जुड़ी हुई है, ना कि हमारे सालों के साथ में, वर्षों के साथ में नहीं है, समय के साथ में नहीं है। ये हमारे श्वासों के साथ में, जितना हम लंबा श्वास लेंगे उतनी हमारी उम्र ज्यादा होती है। तो जो एक्सरसाइज करने वाला है, जो मैदान में रहते हैं, जो खेल कूद में भाग लेते हैं, तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा रहता है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। तो बच्चों, जैसे जैसे जो एक्सरसाइज करेगा उसकी रात की नींद भी कम हो जाएगी, यानी कि वो कम नींद के अंदर ही अपनी नींद पूरी कर लेता है, कम समय में नींद पूरी कर लेता है। क्योंकि जब वो लेटते हैं, जब भी वो लेटते हैं तो उनको लंबा श्वास आएगा। जब वो लंबा श्वास होगा तो अपने आप से उनकी नींद जल्दी पूरी हो जाएगी और बाकी की क्रियाओं में एकदम से तंदुरुस्ती के साथ में वो लग जाएंगे। तो बच्चों, नींद का हमारी मानसिक ताकत के साथ में बहुत ही बड़ा संबंध है। अब ये चीजें कैसे आएंगी, मैं बच्चों आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये चीजें, कोई भी हैबिट है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, किसी भी आदत को सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगता है, 1 वीक। आप चाहे छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, ओनली 1 वीक, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी आपकी आदत है जो पुरानी है, जब तक आप पुरानी आदत को नहीं छोड़ेंगे तो आप नई आदत को आप नहीं ग्रहण कर सकते। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जो मेरे जीवन में रुकावट बन रही हैं, उनको तुरंत ब्रेक करना है, उनको तुरंत तोड़ देना है। और ये, इसमें ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगता है। और इसको आप परख के देख लेना,
हम आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से जैसे जैसे अभ्यास की बात आती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास, अब यहाँ अभ्यास की बात आती है। एकदम से हमने ये नहीं सोचना कि हम दारा पहलवान बन जाए, नहीं, ऐसे नहीं, हमारे को धीरे धीरे करना है। जैसे पहले हम 1 किलोमीटर वॉकिंग या जॉगिंग से करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको हम एक लॉन्ग मैराथन तक ले जा सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं RI मैसूर से, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर से डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग 2014 में मैंने किया। वहां पर मेरा एक और पुराना मित्र मिला जो कि वो भी एयरफोर्स में थे और वो कंप्यूटर टीचर हैं हैदराबाद में। तो जब 2 साथी हम मिल गए तो हमने एक दिनचर्या बनाई कि सुबह हम 4 बजे उठेंगे और सुबह हम 4 बजे उठकर 10 से 12 किलोमीटर है हम जॉगिंग किया करते थे। वहां एक सुंदर लेक थी और उसके चारों तरफ घूमते थे और हम करते करते हमारा उसके बाद में प्राणायाम, योगा, ये सारी चीजें करना, पूरा दिन स्फूर्ति से। मैं आपको बताऊं कि हमने कितने पेज, एक बड़ा सारा बंडल पेजेस का, यानी कि कम से कम हमने 5000 पेज लिखे होंगे कंप्यूटर के ऊपर और दूसरे जो कि विभिन्न क्रियाएं थी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, वो कंपलसरी थी और वो जो काम हमने किया सिर्फ 2 महीने में किया और इसके साथ में ये भी। और फिर बाद में हमने एक हाफ मैराथन 22 किलोमीटर की मैराथन भी हमने दौड़ी जो कि 2 घंटे 10 मिनट में हम दोनों ने पूरी कर दी। तो बच्चों, ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे जो खेल कूद से जुड़े हुए हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनका जीवन आप खंगाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने कितना अभ्यास किया है। सचिन तेंदुलकर जी को ले लो, साइना नेहवाल को ले लो, जी, जितने भी मिलते हैं आपको, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स में मिलते हैं उनके आप जीवन को अच्छी तरह से देखिए। और मैं आपको बताता हूँ स्पोर्ट्स का जीवन यानी कि खेल कूद हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट है, इंजॉयमेंट है। खेल कूद में हम कितना रस्सी कूद जाएंगे हमारे को पता नहीं है। अभी कोरोना का दौर है, लेकिन रस्सी कूद को मत भूलिए, चाहे लड़का है लड़की है, घर में जरूर कीजिए, ठीक है, आप करो, उससे एक्सरसाइज होगी, पसीना बहना बहुत जरूरी है, आपके रोम रोम खुल जाएंगे, पूरे के पूरे पोर खुल जाएंगे। जब वो खुलेंगे तो उसके बाद में एक आपको आनंद की अनुभूति होगी, अलग सा आनंद होगा और इससे आपका जीवन बदलेगा। स्पोर्ट्समैन का जो जीवन है बच्चों, वो त्यागपूर्ण होता है, सहयोगपूर्ण होता है, आत्मनिर्भर होता है। वो इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी संकल्प शक्ति है बहुत दृढ़ होती है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है और यही महान बनते हैं। और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है जो ग्रुप में खेलता है, उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है और उसके जीवन में अनुशासन आता है। जब अनुशासन आएगा तो अपने आप से उसकी पूरी की पूरी लाइफ मैनेज हो जाती है। तो बच्चों, ज्यादा ना बोलते हुए मैं इस शुभ अवसर पर आपको यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप है जो आज से ही अपना जीवन बदलिए। कोरोना जैसी बीमारी तो कुछ भी नहीं, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और इसके साथ साथ हमारे प्राचार्य महोदया जी, कल्पना मैडम जी, याक्षी मैडम जी और समस्त परिवार को, विद्यालय परिवार को मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये शुभ अवसर है यहाँ पर बोलने के लिए दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातें बहुत मूल्यवान थी। हालांकि बच्चों को ये सब बातें पता होती हैं, फिर भी मुझे लगता है कहीं उनको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि आजकल बहुत से बच्चे बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कारण है बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड लेकिन एक्सरसाइज की कमी। तो खेलना कूदना उनकी लाइफ के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना, ताकि वो स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिएं और अपनी जो भी कामनाएं हैं उनको पूरा करें। धन्यवाद सर। This year has been very tough and challenging one on us. Due to COVID-19 situation, most of us are huddled up in our houses. Children have also been adversely affected. Outdoor games have become an unattainable luxury for them. At such times, how to keep oneself fit is what our next participant, Miss Nidhi from class 11 Science is going to share with us. So I request Nidhi
to unmute herself and speak on this topic. Nidhi? Good morning, ma'am. Good morning, Bache. Please carry on. Physical fitness is important, especially in this quadrant. Sports and yoga will give you more peace and more calmness. Good morning to everyone present here. Today, I, Nidhi, am going to share my views on being fit during this pandemic. It is rightly said that a sound mind resides in a sound body. We all need to keep ourselves fit and fine. It's indeed crucial for people of all ages and abilities to stay active. During this COVID-19 pandemic, we all are facing a very tough time. The only way to stay calm and peaceful during this lockdown is to improve our mental as well as physical strength. In this challenging time, we all need to keep ourselves fit and healthy. Games and sports help students as well as adults to strike a perfect balance between physical and mental fitness. Games teach us resilience, identify our inner strengths, and give us a sense of accomplishment. As we all are unable to step out during this lockdown period, we have to make ourselves more physically active to reduce the risk of depression, stress, and anxiety, which is becoming very common nowadays. Regular exercise helps us to get relief from stress, improves our mood, reduces dissatisfaction towards our life, and improves our quality of life. We can take this opportunity to keep physically active by doing yoga asanas, dance, meditation, running, or jogging. It will keep us agile and fresh. Yoga helps us in improving the ability to focus. We can use this lockdown phase to build healthy habits, practices, and especially give time to our very precious hobbies which we are unable to give time in our daily busy life. And this is very important to create a brighter and bigger future for ourselves in our future time. Because yoga is the fountain of youth. You are only as young as your spine is flexible. Thank you and have a marvelous day. Thank you, Nidhi. At such a short notice, you have made it. And Hamza, another classmate of hers, has helped her in this. And I'm sure you must have learned something, students. You must have learned something from this. Our Vidyalaya, keeps organizing many sports events where children participate and come up as winners. And we'll carry on this after this lockdown period also. So this year, it has been very challenging and difficult to manage all this. But still, Vidyalaya principal is quite enterprising, and our vice principal ma'am, again, she is full of support to us all, and we have been able to manage this event online. Now next, we will share a video message of our special guest, Ma'am Divya from Sai NIS Patiala. She is assistant judo coach at NIS Patiala and has represented India in 2008 Olympic Games in Beijing. She has earned silver medal in Commonwealth Judo Championship in 2004 in New Zealand. Besides this, she represented India in various Asian countries and made her mark. Let's hear the message ma'am has conveyed. Presently, she is contributing in academics by training the young coaches. Over to you, Shivangi. Shivangi ma'am
will be presenting the video recording of the message. Shivangi ma'am, am I audible to you? I think it will take a little time for her to join us because probably due to some internet issues, she has left the meeting. She'll rejoin us very soon. Till then, I must say one thing, that playing games on playground is different, but reflecting on such issues where our health is concerned is something very major these days. We should promise ourselves that as soon as this COVID-19 will go away, we all will, try to keep fit through various exercises, go to parks, enjoy the fresh air, and I'm sure all of us are looking forward to it. Shivangi ma'am? So, presently, I request our Vidyalaya principal, Jugal Kishore, to say a few words before. So, what about the address? What about the address of the guest of honor? So actually, ma'am is not able to join, I think. So I'll check with her. In the meantime, if you can address children. And there was a message of Chairman VMC also. Yes, sir. Yes, sir. We'll just come back to you. No problem. So, good morning, everybody. Am I audible to you, madam? Madam Vandana, yes, just raise your hand. Yes, raise sir. Your hand. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. So this is a unique way of celebrating National Sports Day. And I think for the first time in our life, we are doing it. So when we do first things, we must enjoy them. Because we are the first people perhaps to celebrate Sports Day on virtual platform. Though this is due to the compulsions imposed on us due to the prevailing situation of COVID-19, but we cannot stop. The things must move on. I am pleased to say that all teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan, they are busy night and day in planning their lessons, in delivering their lessons, in checking the assignments, evaluating the tests. The things are moving almost in a normal way. So the adaptability level of teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan to perform all activities as per the instructions of Kendriya Vidyalaya Sangathan, this is very high. So I am pleased that this National Sports Day is also being celebrated with the presence of guests of honor. Honorable Chairman VMC will also join us through his message. Teachers and dear students. There was a time when we were students, our teachers hardly encouraged us to play. We were always busy about mathematics, science, social science, and languages. And physical education was considered perhaps the last preference. But in due course of time, I am 54 now, I realize it fully well that physical fitness
is to be given the foremost importance by each Indian, by each one of us. So we all pay heartfelt tribute to Major Dhyan Chand, who was a hockey wizard. You will be pleased to know that during his time when he played hockey, we could win 3 gold medals in Olympics. So winning a gold medal in Olympics was a great achievement. I think for the last so many decades, we have not won even a single medal in hockey. And I also learned that golf, Hitler also had the honor of watching him play. And when he saw his game, he was so impressed that he invited him that he should join the army of his country. I mean the German army, which he very gracefully denied. He was a patriot of first order and was a true sports person. So how can you become a person who reaches at the helm of affairs in a particular field? The only remedy, the only panacea, if you want to gain excellence, is your sense of commitment towards the job which you do. If you remain 100% committed to any job which you do, you are definitely going to enjoy the status par excellence. It may be any field, it may be any work, it may be your studies, it may be your hobbies, it may be your physical fitness, it may be anything which you do. If there is sense of commitment, 100% sense of commitment, then you will definitely do it. So games and sports, they play very, very central part in our lives. They keep us physically fit and mentally alert. If our nation has weak nationals, if our nation has weak citizens, we cannot dream of a prosperous country in the years to come. So the students must take a lead. They must spend at least 1 hour daily on the ground. If nowadays they cannot go to the parks or to the playgrounds, they must practice yoga at home. They must do jumping exercises. They must do stretching exercises, which you can do even in a room. You must perspire. You must sweat. There are 4 ways through which you can clean your body. One is the dirt in your body gets cleaned through your excreta. I mean, Sir, excuse me. I'm Hello? interfering. I'm Yes? interfering. Should I break here and invite our guest also? I think he's ready to join us. Okay, no problem. So Okay, I'll sir. continue after him, after as and when you call. So I will invite you later. Shivangi ma'am. Shivangi ma'am. Shivangi ma'am. Am I audible to you? Anupma ma'am. Yes, Kalpana ma'am, Shivangi ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay, so ma'am, I request you to run the message of Divya ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you.
Namaskar, good morning, all respected dignitaries, teachers, and my dear sweet children. Very good morning to all of you. I want to thank the authority who give me the opportunity to speak few words on the special occasion of National Sports Day. आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है. हमारे हॉकी के सितारे ध्यानचंद जी का जन्म दिवस आज मनाया जाता है. हमारा पूरा भारतवर्ष और खेल जगत आज के दिन को बहुत अच्छे से, बहुत हर्ष के साथ मनाता है. सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज के दिन की नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ. मेरा मैसेज स्पेशली बच्चों के लिए है. बच्चों, जैसे कि हमें ध्यानचंद जी से बहुत प्रेरणा मिलती है, उनका योगदान खेल जगत में बहुत बड़ा है. हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. और आज के समय में जब कोविड बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ा है. हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के आगे बीतता है. हमारी मीटिंग्स, हमारी क्लासेस सभी इसी पर होती हैं. और हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो गई हैं. आपने खास ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का. ऐसे समय में भी आपको घर में ही जो भी बेस्ट पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटीज़ हो वो करते रहना है, ताकि आप फिट रहें, मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें और स्ट्रेस फ्री रहें. बच्चों, ये जो आपका समय है, स्कूल टाइम, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है. इस समय आपको पढ़ाई करनी है, खेलना है, उसके साथ साथ आपके भविष्य के लिए नींव रखी जाती है. आपने फ्यूचर में आगे क्या बनना है ये अभी से डिसाइड हो जाएगा. बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना 100% दीजिए. आप कुछ भी करते हैं, आप अपना 100% दीजिए. पॉजिटिव रहिए. जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत सीरियसली करिए. जो केवी का कल्चर मैंने देखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है. केवी का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है. आपका स्टाफ, आपका सपोर्टिंग स्टाफ, आपका गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है. बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, आपने इस चीज़ का फ़ायदा लेना है. जब आपको सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने कुछ करके दिखाना है. अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. इस कंपटीशन के दौर पे आपको अपने आप को प्रूव करना है. कोविड की तरह इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते रहेंगे, लेकिन हमने डरना नहीं है, हमने इससे लड़ना है. बच्चों, जब मैं स्कूल में थी और मैंने पहला कंपटीशन खेला था, तो मुझे उस टाइम वो फीलिंग नहीं थी जो कि कंट्री के लिए कुछ फीलिंग होती है कि मेरा कोई अपना एक योगदान होगा. ऐसा कुछ नहीं था. खेला, मेडल आया, स्कूल में आकर बहुत तारीफ हुई, स्टेज पे बुलाया गया, सबके सामने वहाँ पर मेडल पहनाया गया. बस ये फीलिंग थी. अच्छा लगता था, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता था. लेकिन धीरे धीरे जब डेली मैं रोज़ उसकी प्रैक्टिस करती थी, ट्रेनिंग करती थी, तो धीरे धीरे मेहनत करते जब आगे बढ़ते गए, स्टेट के बाद नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल पर खेला, तब समझ में आया कि वो धीरे धीरे वो फीलिंग अपने अंदर आती गई. तो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे लिए क्या ज़रूरी होता था उस टाइम, क्या होता था कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था. जितना ज़रूरी खाना पीना सोना है, उतना ज़रूरी ट्रेनिंग करना भी है. मतलब ये हमारी ज़िंदगी में जुड़ गया था. आज भी ऐसा ही है. मुझे लगता है कि जूडो में आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जूडो की वजह से हूँ. तो ये मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. लेकिन जब पीछे देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कितनी मेहनत की है. तो बच्चों, ये समय है आपका. आप इस समय मेहनत करेंगे तो इसका फल आपको आगे जाके मिलेगा. आप खुद याद करेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी थी. मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स में ही आपको कुछ करना है. देखिए, स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है.
आपने स्टडीज को और स्पोर्ट्स को दोनों को बैलेंस करके चलना है। सभी लोग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनते हैं, सब अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अलग अलग फील्ड में अपना नाम आगे काम करेंगे। लेकिन अगर हमारा मकसद एक हो और हमने यही सोचना है कि हमने कंट्री के लिए सर्व करना है, जो आप आज मेहनत करेंगे, कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आपने जो पहले मेहनत की थी वो आज के दिन के लिए की थी। तो बच्चों, बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत मोटिवेटेड रहिए। आपको इतना अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर मिला है, केवी का स्पोर्ट्स कल्चर मैंने देखा है। आपका स्टाफ, आपका कल्चर, आपको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने भी 100% देना है। उतनी ही ईमानदारी से आपके साथ आपने मेहनत करनी है। देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका स्कूल, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी कम्युनिटी बहुत खुश होगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए बच्चों, अभी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाके कहीं ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है घर से और बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट द्वारा इतने सारे सेंटर्स, ग्रास रूट लेवल पे इतना काम किया जा रहा है, इसका फ़ायदा लेना है। बच्चों को सिलेक्शन करके एकेडमीज़ में भेजा जा रहा है और उनको लंबे समय तक ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आगे तक देश के लिए अच्छा कर सके। तो जब सरकार और सब लोग इतना हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स आ गई हैं, तो इसके लिए आपने अवेयर रहना है और तैयार रहना है। मेहनत करो अच्छे से और देश का नाम रोशन करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे आपके लिए, बहुत सारी जॉब्स ऑफर होंगी आपके लिए, बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स रखे हैं आपके लिए। बस मेहनत करिए। आपसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि मेहनत करिए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी है। पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ नेशनल स्पोर्ट्स डे की। और बच्चों, आपके लिए मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप ऐसे अपना बहुत अच्छे से अपना मेहनत करिए और देश का नाम रोशन करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल मैसेज। मैम ने बहुत कामली बहुत अच्छी बातें बच्चों से शेयर की हैं। नेगेटिविटी दूर तभी रह सकती है if we actively participate in whatever is happening around us in our house। जो भी ड्यूटीज हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो नेगेटिविटी तो आएगी ही नहीं। विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो चिल्ड्रन, everyone who's coming to us, who's addressing us, is just saying only one thing: work hard, be positive, and enjoy your life. That ways you will succeed. So that means there is some essence in it. उसमें कुछ सच्चाई है। जब हर इंसान एक ही बात करता है तो उसमें कोई सच्चाई होती है। और अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर दिनेश सर का वेलकम करती हूँ। सर मैनेजर एंड इंचार्ज स्पोर्ट्स हैं HSIIDC में और भीम अवार्डी हैं 2006-07 के लिए इन हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन वॉलीबॉल। और भी बहुत सारी प्रतिभाएं इनकी जो हैं स्पोर्ट्स की, उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं एशियन चैंपियनशिप में, नेशनल गेम्स में, SF गेम्स में, और 8 times he has won gold in senior national championship. सर, आपका स्वागत है। We are honored with your presence. So now I request you to say a few words. सर, आपका माइक ऑडिबल अनम्यूट नहीं है।
Now I'm audible. Yes, sir, you audible now. नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे केंद्रीय विद्यालय स्कूल को, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 को, प्रिंसिपल सर को, सारे स्टाफ को, मेरी तरफ से सारे बच्चों को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। मैं आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पे आपसे कुछ चीजें बताना चाहूँगा कि मैं इसको कैसे देखता हूँ नेशनल स्पोर्ट्स डे को। सबसे पहले मैं बच्चों को ये चीज क्लियर कर दूं, उनको ये चीज बताऊं कि स्पोर्ट्स कितनी जरूरी है आज के टाइम में। जैसे कि आपको पता ही है कि स्पोर्ट तो वैसे सारे बच्चे करते ही हैं जनरली, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेम तो खेलता ही है। पर मेरा इस सिचुएशन इन द सेंस कि जो अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक है और जिसकी वजह से जो उथल पुथल हुआ है वो हम देख रहे हैं, और क्या हमारी हालत है हमारी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की क्या हालत है। इस कंडीशन में अगर कोरोना वायरस या किसी भी वायरस, और भी कोई वायरस हो, स्पेनिश फ्लू हो, कोई भी फ्लू हो सकता है कोरोना जाने के बाद कुछ और आ जाए, गॉड नोस। लेकिन हमें उससे कैसे ठीक रहना है, उससे बचना कैसे है, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा सभी बच्चों को, यस हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर एक्टिविटी पहले तो नहीं कर रहे थे, अब तो चलो धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं हम लोग। तो इससे आप जितना स्पोर्ट्स को खेलोगे, जितना रनिंग करेंगे, जितना फिजिकल एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जॉगिंग, कोई गेम खेलेंगे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी गेम खेलेंगे, उससे क्या होती है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होती है हमारी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं हिंदी में, वो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस हमें अगर वो एंटर भी करता है हमारी बॉडी में गलती से भी, तो वो हम कितने अच्छे तरीके से उससे हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड करके उसे खत्म कर सकती है। तो ये इस चीज में एक मतलब क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी वेपन है इस कोरोना काल के लिए इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के लिए अच्छी डाइट होनी चाहिए और अच्छे एक्सरसाइज होनी चाहिए। बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, तो स्पोर्ट्स तो है ही है। और इस कोरोना काल में स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है और इसकी वैल्यू क्या है, लोग इस फिटनेस प्रोग्राम से कैसे जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ आजकल लोग साइकिल काफी चला रहे हैं, पूरे पार्क भी फुल होते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मुझे देख करके काफी अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स करने का मतलब ये नहीं होता है, एक स्पोर्ट्स हो जाता है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट सभी जानते भी हैं। ओलंपिक है, एशियन चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है सॉरी। एक होती है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नॉट फॉर ओनली द मेडल्स, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर गुड डेवलपमेंट ऑफ योर फ्यूचर, गुड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। जैसे आप एक अच्छे इंसान बन सके, अच्छे इंसान इसलिए बन सके, मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन एक अच्छा इंसान भी होता है, बहुत अच्छा इंसान होता है, क्योंकि वो खेलता है, खेलने के साथ साथ वो दूसरे के साथ जो स्पोर्ट्स करते हैं वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलते हैं। जैसे आप कोई भी नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी टीमें आती हैं, बहुत सारे बच्चे आएंगे, आप पूरे बच्चों को देखोगे, उनसे बातें करोगे, उनका लैंग्वेज को समझोगे, इंटरेक्शन बढ़ेगी मैन टू मैन, उनके खाने के हैबिट्स, उनके बात करने के हैबिट्स, उनके कल्चर। तो एक स्पोर्ट्समैन हर चीज से ये इतना अच्छे तरीके से वो सुलझ जाता है बातें करके आपस में और एक दूसरे को जान पहचान करके। तो उसके पर्सनल बिल्डिंग जो होती है ना, उसकी जो वो क्या कहते हैं, जो उसकी अपनी सोचने की, एक दूसरे को समझने की, जिसे कहेंगे कि उसकी कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। एंड द सेकेंड थिंग, स्पोर्ट्स में आपको पहले बता रहा था कि स्पोर्ट्स सिर्फ वो स्पोर्ट्स नहीं है जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स मतलब हम कितने घंटे खेलते हैं, कितने % बच्चे खेलते हैं स्कूल में। सपोज कि आपके स्कूल में 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी, उसमें से कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, वो अलग विषय है। बच्चे कितने ग्राउंड में आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो अलग बात है। एक अभी इंडिया में सर्वे हुआ था, मैं आपको सर्वे के कुछ जो डाटा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ओनली 5% आई थिंक बच्चे जो हैं इंडिया में
जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, रेगुलर स्पोर्ट्स करते हैं, सिर्फ 5%। अब आप इससे आप सोच सकते हो कि 95% बच्चे फील्ड में नहीं जा रहे हैं, ग्राउंड में नहीं जा रहे हैं, वो कंप्यूटर पे और जो वर्चुअल गेम्स हैं वो सब खेल रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे हैं। और जब हम खेलते थे तो हमारे टाइम पे बच्चे, वर्चुअल वर्ल्ड इतना था नहीं, और हम लोग सिर्फ बाहर ही खेलते थे, स्टेडियम में ही खेलते थे, बाहर जाकर के खेलना और फिजिकल एक्टिविटी करना, पढ़ाई भी करना। तो इन सब चीजों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा आकर के पार्टिसिपेट करें, खेलें, सिर्फ मेडल के लिए नहीं, उनके अपने फिजिकल फिटनेस के लिए और मेंटल फिटनेस के लिए। मेंटली बच्चे फिट, फिजिकली तो सबको हम बात करते हैं कि फिजिकली हम खेलेंगे तो फिट रहेंगे, मसल्स डेवलप होंगे, तो इंडोरेंस बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक मेंटली भी फिटनेस इसको जोड़ता हूँ कि स्पोर्ट्समैन जो है वो मेंटली काफी फिट होता है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को हार्डली मैंने कोई सुना हो कि किसी ने कभी सुसाइड किया हो, या कोई डिप्रेस्ड हो, या कभी उसने वो मतलब डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हो। नेवर नेवर नेवर। स्पोर्ट्समैन डिप्रेस्ड बहुत ही रेयर से भी रेयर होते हैं, 100 में 1 हो सकता है केस। मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि 100% होगा। तो मेरी ये एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ की कि स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों के पढ़ाई पे, उसके एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इंडियन पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और स्पोर्ट्स में मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मैं एक योजना थी भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD की, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, मैं उससे भी जुड़ा था, जिसको केंद्रीय विद्यालय संगठन ने परस्यू किया था। मैं उस टाइम भी आया था आपके स्कूल में, जुगल किशोर सर हैं प्रिंसिपल सर, मैं उनसे कई बार मिल भी चुका हूँ, और हमने इस बारे में आगे भी बात की थी, कई बार डिस्कस किया है हमने। तो ये जो मिशन था ये बहुत अच्छा था, और ये इसीलिए था जिसके बारे में आपको मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर के खेलें। पहले खेले तो सही, उसके बाद हम मेडल की बात कर लेंगे, कौन जीता कौन हारा वो बात की बात है। हमारा मोटिव ये है, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट भी ऐसी सोच रही है, हमारी भारत सरकार भी ऐसी सोच रही है, खेल मंत्रालय भी ऐसी, यही चीज फोकस करके उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, ये योजना बनाई कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में आएंगे तो खेलेंगे तो सबसे पहले वो फिट रहेंगे, वो बीमार नहीं होंगे, वो फिजिकली मेंटली हेल्दी रहेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उसको फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे ऐसा लगता है। और स्पोर्ट्स आज के टाइम में इंडिया में एज ए कैरियर भी आप उसको चुन सकते हैं। अगर कई लोग होते हैं, कई पेरेंट्स मैंने कंसर्न देखा है कि वो इस बारे में काफी ज्यादा वो होते हैं, सीरियस होते हैं कि ये सब खेलने के बाद क्या, बच्चे का सारा जो गोल्डन पीरियड है वो स्पोर्ट्स में जा रहा है, उसके बाद क्या, 18 ईयर्स 17 ईयर्स 16 ईयर 19 ईयर्स जो भी ये अच्छा टाइम होता है बच्चे का, वो स्टडी के लिए वही टाइम होता है। लेकिन एक चीज है, स्टडी के लिए हम स्टडी बाद में कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है स्टडी हम आफ्टर 25, आफ्टर 28, 30 भी आप कर सकते हो, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो, लेकिन उस एज के बाद आप खेल नहीं सकते हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाओगे अगर 30-35 के बाद अगर आप कोई कहे कि नहीं मैं अब खेलना शुरू कर सकता हूँ और मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए स्पोर्ट्स के लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो टीन एज होता है उससे पहले भी, इवन तो उससे पहले भी अब तो स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। तो इससे बच्चों को आप कैरियर के लिए भी इसको चूज कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। जैसे आप हिमा दास को देखो, हिमा दास पहले प्रैक्टिस कर रही थी आसाम में, वो इतनी मतलब एडवांस सिचुएशंस थे, उसके घर की हालत इतनी बुरी कहेंगे मुझे, कि उसे इतना कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने डिवोटेड एक स्पोर्ट्समैन की तरह वो जुड़ी, पहले फुटबॉल खेला, फिर धीरे धीरे रनिंग करना शुरू किया, रनिंग किया तो फुटबॉल में क्या सभी
जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उनको भी वो पीछे हरा देती थी। तब किसी ने उसको कोच ने उसको देखा और उसको एथलेटिक्स में लेकर के आए। आज आप सभी जानते हो द्युति चंद हैं या हिमा दास हैं, ये लोग कितने एडवांस सिचुएशन, एक ऐसे छोटे से शहर से इतना कुछ लड़ना, हर कंपटीशन में जाना, हर कंपटीशन में अपने आप को प्रूव करना, 100% देना, फैसिलिटीज नहीं के बराबर हैं, है ना, जूते नहीं है तो किट नहीं है, और जो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं हिमा दास, कितनी बड़ी बात है। तो मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स तो जरूर करें, और आज से अच्छा दिन तो नहीं हो सकता है। स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, और उनके बारे में मैं तो क्या कहूँ, वो तो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन मैंने शायद आज तक नहीं पढ़ा है पूरे वर्ल्ड में कि ऐसे सिचुएशन में कोई खेलता हो और इस तरीके से जिसका परफॉर्मेंस हो। 3 वर्ल्ड ओलंपिक्स हो, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में कंटिन्यूसली उन्होंने गोल्ड मेडल हमारे कंट्री के लिए जीते। तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो ऐसे हॉकी के जादूगर हैं, ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा, हॉकी प्लेयर ऐसा होगा। तो मैं सभी बच्चों से यही चाहूँगा, और बच्चों को ये जरूर कहूँगा कि कम से कम 2-3 गेम तो जरूर खेलो आप लोग, चाहे हॉकी हो या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, है ना, टेबल टेनिस हो, स्विमिंग तो चलो अभी नहीं कर पा रहे कोरोना की वजह से, लेकिन स्विमिंग हो, तो 2-3 गेम बच्चों को खेलना चाहिए। इससे आपके अलग अलग मसल्स डेवलप होते हैं बॉडी के, वो बहुत जरूरी है। और आज के दिन आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक्चुअली ऐसे वेबिनार में आकर के इंटरेक्ट करना बच्चों के साथ। सो काफ़ी अच्छा है आपका इनिशिएटिव, एंड ऑल द बेस्ट सारे बच्चों। आप लोग ऐसी स्टडी पे भी ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि खेल रहे हो तो खेलते रहो। मैं कहूँगा कि स्टडी भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितना हेल्थ है, जितना स्पोर्ट्स है। तो दोनों एक साथ लेकर के चलो, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, कि कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा वो होता है। मैं जब भी आपको कह रहा था कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो डिप्रेस क्यों नहीं होते हैं, वो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाते हैं, वो सुसाइड क्यों नहीं करते हैं, या ऐसा कुछ गंदी आदतों में क्यों नहीं पड़ते हैं, या कुछ भी हो, क्योंकि वो खेलना जानते हैं, खेल करके हारना भी जानते हैं, हार जीतना भी जानते हैं, हार करके फिर खेलना जानते हैं, अगले दिन फिर से जाके प्रैक्टिस करना, फिर से एक नए इवेंट में जाना, फिर वहां कंपटीशन देना, फिर खेलना। एक दूसरे से हारने के बाद भी प्लेयर्स एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, गले लगाते हैं, जैसे रेसलिंग में हो, हर गेम में ऐसे ही होता है। गेम से पहले वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, है ना, मैच के बाद भी वो एक दूसरे को गले मिलते हैं, ग्रीट करते हैं। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप, उनको ये कभी मायूसी हो ही नहीं सकती है उनकी लाइफ में, कह रहे मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था, मुझे कम मिल गया, मैं ज्यादा डिजर्व करता था। ऐसा स्पोर्ट्समैन में होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर वो चीज इतनी भरी होती है, और उनके साथ वो हमेशा हुआ होता है, क्योंकि वो खेलते हैं, चोट लगेगी, नेचुरली खेलोगे तो चोट लगेगी, उसको ओवरकम करना, इंजरीज से ठीक होना, फिर आना, फिर खेलना। तो इसलिए स्पोर्ट्समैन जो होते हैं काफी एनर्जेटिक होते हैं, उनकी बिहेवियर अलग होती है, उनकी पर्सनालिटी इन्हीं सब चीजों से अलग होती है, जो कि और कहीं आपको नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्समैन इन्हीं सब चीजों के लिए जो है उसकी लाइफ अलग हो जाती है बाकी फील्ड के किसी बच्चों के साथ। तो आई वुड लाइक टू कॉल एवरीवन वंस अगेन हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। आज के दिन आप लोगों ने मुझे बुलाया। जुगल किशोर सर, थैंक यू सो मच। साक्षी मैम, थैंक यू सो मच। सारे KV2 के सारे स्टाफ, सारे टीचर्स, तो मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। आपके बच्चे खेलना शुरू करो। ओके, थैंक यू।
If you train hard, you will not only be hard, but hard to defeat. The only need is to rule your own self first. Your experience speaks volumes. And thank you for your guidance, your valuable inputs. And I'm sure all our budding sports persons in the school will pick sports as career with your inspiration. Yes. Thank you, sir. Yes. Our Vidyalaya has recently been joined by Brigadier R. Ravi Kumar, Chairman VMC, Artillery Branch, Headquarter Western Command. He has also conveyed his good wishes to the students and has sent a message on this day. So let us share his message. I request Shivangi ma'am to share the message, please. On the occasion of National Sports Day, on behalf of the entire management of Kendriya Vidyalaya 2, Chandi Mandir Cantonment, I extend a very warm felicitations to all the students. Students, the sports is a very important component of the educational curriculum. Sports provides personality development and energy and spirit to meet the various challenges in life. It is said that the battles which a soldier fights are already fought on the sports field. So children, I would request you, all of you, to take great amount of interest in all sporting activities. You don't have to be a superstar. You can start any game, any sport, and you'll find that slowly you'll develop the sport to such a level that you will develop additional qualities knowingly and unknowingly, which will stand you in a better stead in the life to meet great challenges. I also take this opportunity to thank the Physical Education Department of KV2 and the principal KV2 for taking a keen interest in sports. I am aware because of the present pandemic, sports activity of all children have got affected, and I pray and that this pandemic gets over and we'll soon see you all in the sports field enjoying sports. So once again, I wish you a very, very happy National Sports Day. Jai Hind. Thanks to Sir. No stone has been left unturned, children, to inspire you. Now it's on you, how you take up this opportunity and be a part of this beautiful world, adopting games and sports as a regular thing in your life. To sum up the day's events and share his pearls of wisdom, now I request our dynamic and knowledgeable principal, Mr. Jugal Kishore, to address us all. Sir. Yes, I continue with my speech. I was asking and explaining the things to you in different parameters. So I was telling that if you want to keep your body fit, you must clean it properly. Because if you keep a utensil dirty, it will go on gathering dirt and it will ultimately become extremely dirty. So when you wash utensils, you might have seen how nice they look after washing. So in the same way, the washing of the body, I mean internal as well as external washing, is very, very important. So certain cleansing is done by the systems of the body. So there are different systems which work, like we have, excretory system, we have digestive system, we have nervous system. So the excretory system excretes dirt from your body. So it comes out in the form of
excreta, stool, urine, and sweat. If you're, passing of stool, passing of urine, and flow of sweat, if it remains normal, then a lot of cleaning is automatically done. But there is one more cleaning, and this is cleaning of our breathing, the air which we take in and the air which we send out. So this cleaning is done through pranayamas. Pranayamas like Kapalbhati, Anulom Vilom, and some other pranayamas. So if you practice pranayamas every day, so you will get sufficient oxygen inside your lungs, and once sufficient oxygen is inhaled by you, your lungs will become very, very healthy and active, and then the discharge of oxygen in the whole body will be sufficient. The flow of blood will also be adequate, and ultimately you will grow every day. As Mr. Dinesh Singh rightly said, that study can be done even during later years of life. But if you want to practice games and sports as a career, then you need to do it now. You need to do it in your schooling, starting from your primary schooling. So it depends how you keep your bodies fit. And if you want to gain excellence like Major Dhyan Chand, whose birthday we are celebrating, then you must choose sports as a career. And once you choose sports as a career and you shine like a star in the sky of sports, then the name of our country will get associated with you. You will be known by a national hero of a particular event or of a particular game. But I also want that everybody, whether you are an engineer or a doctor, a teacher or a nurse, a plumber or an electrician, you all need to have excellent physical strength. Your body must have excellent agility, excellent flexibility, excellent endurance, and excellent stamina. So if you have all these things in your body, you will always remain active and happy. Happiness is directly linked with the state of mind as well as state of body. You just imagine when some injury takes place and you get a small rash, how painful does it look like? And nowadays, when the whole world is confronting the danger of coronavirus, those people who live with comorbidities, who have some fatal diseases, whose immunity is weak, they become more susceptible to the virus. And you will be pleased to know that the death rate in India is very less in comparison to the Western countries. So this is less because the immunity of Indians is good, is very good. So once your immunity is your ability to fight with the viruses, fight with the bacteria. So if your ability to fight with viruses and bacteria is excellent, you will definitely confront the disease also with a lot of courage. But if your immune system is weak, if your strength is weak, then you are going to fall prey to coronavirus or to other diseases. So one thing I wish to say, that there is a need that we should revive hockey. Hockey, which is associated with Major Dhyan Chand, has lost its glory in due course of time. And this glory is being hijacked by cricket. Now most of the people who watch television, who watch sports events, so they would show their preference to cricket as number one preference. But I wish that we must give importance to hockey,
because hockey is such an event, such a game where the result becomes very visible in an hour, in more than an hour, 1.5 hours or so. But for cricket, you need to watch for a long time. Though 2020 matches are very small duration matches, but still it takes a lot of time. So if we want that hockey must regain its lost glory, then each school must have an excellent ground. We should have AstroTurf grounds. We should have excellent coaches who can train our children. So once focus is given to this game, then I'm sure that India once again can provide the leading role, and we can once more win the gold medal in Olympics. So I think lot has been spoken on the event today. So I am pleased, I am thankful to the guests who shared their experiences. They are very senior sports persons. Mr. Dinesh Kumar and Madam from Patiala, who was an expert of judo and our national level athlete. And their ideas, their thoughts were really thought-provoking. And I am also grateful to all the staff members, especially Vice Principal, then our Games and Sports in charge, Madam Jakshi Bhatia, Madam Shivangi Gaud, and Madam Kalpana Sharma. So they did a lot of efforts, coordinated with people, spoke to you, and ultimately organized this event in the best possible manner, which can be done in the prevailing circumstances. So once again, I pay my heartfelt tribute to the hockey wizard, our legendary player Major Dhyan Chand. I hope his life will definitely act as a beacon. It must act as a motivating force for most of the students of our school and all the students of this country. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Journeying through its numerous milestones, we have reached the culmination of the event. And I here urge Ms. Anupma Bansal, our Vice Principal Ma'am, to propose a vote of thanks. Anupma Ma'am, over to you. Yeah. Am I audible, Kalpana ma'am? Yes, you are, ma'am. Okay. So today's special guest of honor, Mr. Dinesh Kumar, respected principal sir, learned teachers, and dear students. A very good afternoon to all of you. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this day, that is National Sports Day. I, on behalf of KV number 2 Chandi Mandir Cant and the entire fraternity of the Vidyalaya, first of all extend my most sincere thanks to our guest of honor, Mr. Dinesh Kumar, Manager HSIIDC, Beam Awardee, and Ms. Divya, Judo Olympian, presently working as Sai NIS coach at Patiala, for their inspirational and motivational words and about the importance of sports, which will definitely ignite a spark of true sportsmanship among our students. I am immensely thankful to Brigadier Mr. R. Ravi Kumar, Chairman VMC, who despite of his tight schedule found time to share his views, thoughts, and this will surely be going to encourage our students in future events. I would like to extend my gratitude to our principal sir for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillar of strength. I also would like to take the opportunity to thank Mr. Baldev for sharing his opinions on fitness and wellness, Mrs. Kalpana for a wonderful anchoring, our PET, Mrs. Yakshi, who put great efforts to plan and organize this event and various competitions, and for her informative speech about hockey wizard, Mr. Dhyan Chand, Mrs. Indu
Mrs. Deepa, Mr. Gaurav, for their enormous cooperation to successfully organize all the competitions. I need to mention my deepest sense of appreciation to Mrs. Shivangi, who put her untiring efforts to make all the technical arrangements. I would also like to thank all the teachers who worked behind the scene to make this event happen. I would like to thank Class 12 Commerce Harsha, who prepared the song for this event, but unfortunately couldn't be played because of technical problems. Our ex-student Kumari Pratima Pratim, who had represented KVS in athletics at SGFI, for sharing her experiences. Class 11th Science student Kumari Nidhi, for her views on fitness during COVID-19, and all those students who participated in various competitions. I would like to congratulate all the winners, and thanks to all those students who are gracing this event by their online presence. Last but not the least, thanks to all the parents for inspiring their words, for inspiring their wards to participate in this event to make it a great success. So once again, thank you to one and all. A very happy National Sports Day to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Lakshmi ma'am. Once again, I wish everybody a very happy National Sports Day. I hope we stay fit and strong. And on this occasion, we are going to have a sports quiz. A link would be sent to all the teachers. They will be sending it to their respective classes after the event is over. By evening, the results would be declared and participation certificates and certificates of merit would be given to the participants through email itself. Thank you and have a nice day. Thank you everyone for joining us on this wonderful day of the birthday of hockey legend Major Dhyan Chand.